ہوگی شیر کی دھاڑ یا تیر کرے گا شکار؟ آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے کے لیے 20 حلقوں میں پولنگ، ووٹنگ کی گنتی جاری۔ مظفر آباد ڈویژن کی 8 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ۔ LA 27 مظفر آباد 1 میں بارش اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث پولنگ ملتوی، جبکہ بارش اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث انتخابی عملہ نہ پہنچ سکا۔ مظفر آباد ڈویژن کے انتخابی وقت میں 1 گھنٹے کی توسیع کی گئی۔ الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل کی میڈیا ٹاک، کہا آزاد کشمیر کے حلقہ LA 27 کا ملتوی انتخاب 4 اگست کو ہوگا، جبکہ پیپلز پارٹی کے اعتراضات پر کارروائی کر کے انہیں آگاہ کر دیا ہے۔ نون لیگ کے کارکنوں نے مجھ پر حملہ کیا، قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر کا الزام، کہا لیگی کارکنوں نے پروٹوکول سٹاف سے اسلحہ چھیننے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کا صدر آزاد جموں کشمیر چودھری لطیف اکبر پر حملے کا نوٹس، کہا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ آزاد کشمیر کے قائم مقام صدر چودھری لطیف اکبر پر حملے کے خلاف پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے شکایت کر دی۔ چودھری لطیف اکبر پر حملے کا فوری نوٹس لینے اور سخت کارروائی کا مطالبہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی چودھری لطیف اکبر پر حملے کی مذمت، کہا مسلم لیگ نون کارکنان نے صدر آزاد کشمیر پر حملہ کیا، ذمہ داران کو فوری گرفتار کیا جائے۔ LA 31 میں ہمارے کارکن مشتاق شاہ کو شہید کیا گیا، جعلی مشتاق شاہ کے قاتلوں کو کیفرے کے دار تک پہنچایا جائے۔ نون لیگ گولی لاٹھی اور زور زبردستی سے ووٹ پر ڈاکہ مار رہی ہے، مسلم لیگ نون ہر حد پار کر گئی۔ قمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ قائم مقام صدر آزاد کشمیر اپنے حلقے میں گئے تو ان پر حملہ کیا گیا۔ نون لیگ کے کارکن الیکشن عملے کو اٹھا کر لے گئے اور ٹھپے لگائے۔ بارش سے درخت گرنے پر الیکشن ملتوی کرا دیے گئے۔ الیکشن ملتوی کرنے کا وہ بہانہ بنائے جو قابل قبول ہو۔ پتہ نہیں مسلم لیگ نون کو کیوں ہر صورت اقتدار چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا پھر پولنگ عمل پر شدید تحفظات کا اظہار۔ سینئر رہنما نیئر بخاری کی نیوز کانفرنس، کہتے ہیں نون لیگ جبر اور دھون سے انتخابات جیتنا چاہتی ہے۔ یہ 2024 میں بھی الیکشن ہارے تھے۔ پولنگ سٹیشن کے باہر نون لیگ والے بیلٹ پیپر فراہم کرتے رہے۔ اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر نہیں سمجھتے۔ پیپلز پارٹی ایسے انتخابات کو قبول نہیں کر سکتی۔ ندیم افضل چند نے کہا آزاد کشمیر کا الیکشن الٹرا فارم 47 بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جن حلقوں میں پیپلز پارٹی مضبوط تھی وہاں سامان کیوں نہیں پہنچا؟ کیا صرف پیپلز پارٹی کے مضبوط حلقوں میں موسم خراب ہے؟ جس طرح انتخابات کروائے گئے اسے فری اینڈ فیئر نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ تیسرے مرحلے میں بائیکاٹ کی طرف جائیں۔ دھاندلی والے الیکشن کے انتخابی نتائج قبول نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر انتخابات میں مبینہ بے ضابطگیوں کی شکایات، الیکشن کمیشن سے کارروائی اور تحقیقات کا مطالبہ۔ مختلف حلقوں میں دھاندلی، غفلت اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں کی شکایت درج، جبکہ پیپلز پارٹی کا LA 25 میں بوگس ووٹنگ کا الزام۔ LA 28 کے 71 پولنگ سٹیشنز پر عملے کے بروقت نہ پہنچنے کی شکایت۔ LA 30 میں بیلٹ باکس منتقلی اور جعلی ووٹ کی بھی شکایت۔ LA 32 میں جعلی ووٹوں کی شکایت، الیکشن کمیشن کو ارسال۔ LA 34 میں پولنگ ایجنٹس کو روکنے کا الزام۔ کشمیر میں عوام نے جمہوری عمل میں بھرپور حصہ لیا۔ LA 34 اور LA 41 میں ووٹرز کا اچھا رسپانس ملا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا عوام نے ترقی اور نون لیگ کے منشور کو ووٹ دیا ہے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا کہنا ہے بغیر ثبوت دھاندلی کے الزامات لگائے گئے، عوام کا فیصلہ دل سے قبول کرنا چاہیے۔ الزام تراشی کے بجائے عوام سے پوچھیں انہوں نے آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیے۔ میرپور کے الیکشن کے بعد آپ کو یاد آیا کہ دھاندلی ہو گئی۔ اس وقت پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر کے اندر گورنمنٹ ہے، وزیر اعظم بھی پیپلز پارٹی کا، صدر بھی پیپلز پارٹی کا، اسپیکر بھی پیپلز پارٹی کا، انتظامیہ بھی پیپلز پارٹی کی۔ تو پہلے تو یہ سوچیں، پہلے تو یہ پوچھیں کہ آپ کی حکومت آپ کے خلاف دھاندلی کر رہی ہے۔
किसी का रोना बता रहा है, मीरपुर के बाद मुजफ्फराबाद में भी शेर जीत रहा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, इलेक्शन में हारने वाली जमात ज़ारो ख़तार रो रही है। इलेक्शन रोने और धमकियां देने से नहीं जीते जाते, इलेक्शन लड़ना पड़ता है। क्या कभी रोने से भी वोट की पर्ची पर मोहर लगती है? वोटर्स के बगैर तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। इंतखाबात इल्ज़ाम तराशी या धमकियों से नहीं, अवामी कारकर्दगी और वोटर्स के जोशो खरोश से जीते जाते हैं। रोने वाले रोते रहेंगे और शेर धारता रहेगा। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कायद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के आखिरी मरहले में भी शेर दहाड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में पुरअमन पोलिंग हुई। लोगों ने मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर होकर शेर को वोट डाले। कश्मीरियों को भी लैपटॉप, स्कॉलरशिप्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। तरक्याती मंसूबे कश्मीरी आवाम का भी हक है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला। मुल्क भर में कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 सीटों पर भी पोलिंग हुई। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, पसरूर, नारोवाल, कसूर में वोटिंग की गई। अलीपुर, चट्टा, मंडी बहाउद्दीन, फैरोजवाला में भी वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। मुल्तान, बहावलनगर, लाड़काना, पेशावर, कोयटा और कराची में भी वोट डाले गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में मुख्तलिफ पोलिंग कैंप्स का दौरा। कारकुनों से मुलाकात में कहा, नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमला करने का फैसला मौखर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, इसराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तफाक किया। अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक की तरफ से हमला रोकने की दरख्वास्त की गई। इस दरख्वास्त की बुनियाद पर दुनिया के मुस्तकबिल और खुशहाल ईरान के लिए हमला मनसूख करने पर इत्तफाक किया। मुआहदे की बुनियादी शराइत तय पा चुकी। मुआहदे में आपने हॉर्मुज़ को फौरी खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल है। सब लोग काम करें और मुआहदे को मुकम्मल करें। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर से ईरान पर मुमकिन बड़े हमलों के मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया था। अमरीकी जारहियत के खिलाफ दिफा के लिए तमाम ज़राए इस्तेमाल करने का ऐलान। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया है कि तेहरान हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। दुश्मन को हमलों के लिए सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त भी जारहियत है। ऐसे हमलों के मराकज़ को निशाना बनाना उन ममालिक पर हमला करार नहीं दिया जा सकता। ईरान दुश्मन की जारहियत के मुकम्मल खात्मे तक मुज़ाहिमत जारी रखेगा। अमरीकी बहरी नाकाबंदी और हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। सलामती कौंसिल इस मामले में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रही। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने सिर्फ मुबहम बयानात दिए और कोई मौसर इक़दाम नहीं किया। आपने हॉर्मुज़ दोबारा खोलने से मुतल्लिक ईरान की मंजूरी की खबरें बेबुनियाद करार। ईरानी मीडिया ने आला हुकाम के हवाले से बताया कि आबी गुज़रगाह से मुतल्लिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीका के जारहाना इक़दामात बंद होने तक आपने हॉर्मुज़ भी बंद रहेगी। हंगू के इलाके छपड़ी नरियाब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितरतुल खवारिज का अहम कमांडर अमीर मुआविया हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अमीर मुआविया खजीना बांडा पुलिस चेक पोस्ट हमले का मुबैना मास्टरमाइंड था। ज़राए के मुताबिक अहमद उर्फ मुआविया गुज़िश्ता रोज़ ड्रोन कार्रवाई में जख्मी हुआ था। बाद अज़ा ऑपरेशन में हलाक हो गया। हुकाम के मुताबिक हलाक कमांडर दहशत गर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मतलूब था। खजीना बांडा हमले में मुलविस तमाम दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। दहशत गर्दों ने 29 जुलाई को हंगू के खजीना बांडा पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया था। मुल्क से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। केपी में ऑपरेशन 11 गरज के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। 2 माह में मुतादिद ख्वारिज हलाक और ठिकाने तबाह किए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाइयों में सहूलतकार गिरफ्तार, असलहा और गोला बारूद बरामद। बाजोड़ के इलाके शाकरों में ख्वारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया।
ऑपरेशंस में मुतादिद खारिज के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात। ज़मीनी और क्वाडकॉप्टर ऑपरेशंस के जरिए दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों से दहशतगर्दों को पसपाई पर मजबूर किया जा रहा है। सिंध में भी मानसून के रंग। मीरपुर खास में बादल खूब बरसे, 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके से रियाब। हैदराबाद में बरसात, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। थरपारकर में तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश। नंगर पारकर और छाछरों में बारिश से तालाब पानी से भर गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की नवीद। पंजाब, केपी, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। रहीम यार खान शहर और गिरदोनवाह में मानसून की पहली बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में बारिश की तवक्को। बारिशों का सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास बारिशों और हंगामी सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध का बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू, रिलीफ और निकासियाब के इक़दाम तेज़ करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स, PDMA, महकमा बल्दियात और ज़िला इंतज़ामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम अफसरान अपने इज़ला में मौजूद रहकर सूरत हाल की निगरानी करें। सैयद मुराद अली शाह का गैर हाजिर टाउन ऑफिसर उमर कोट को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का भी हुक्म। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध भर में बारिशों से 8 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हुए। वज़ीर आला सिंध का जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद फराहम करने की हिदायत। मेयर कराची ने कहा, कराची में 10 हैवी ड्यूटी डी वाटरिंग पम्प्स मुख्तलिफ मकामात पर तैनात हैं। मुराद अली शाह की कराची में निकासियाब के तमाम इंतजामात मुकम्मल तौर पर फाल रखने की हिदायत। कहा, बारिशों के दौरान आवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। तमाम इदारे मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक रहें। हालिया बारिशों के बाद दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। जनाब राज, कोट चंदाना के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चिनाब में हेड तरीमों पर पानी की सतह में उतार चढ़ाव। 18 हज़ारी के नशेबी इलाकों में सैलाबी पानी अब भी मौजूद। फसलें मुतासर। वजीराबाद के नाला पलखों में दरमियाने दर्जे का सैलाब। नारोवाल के नाला बसंतर में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। फेरोजवाला में 9 रोज बाद भी सैलाबी पानी मौजूद। मकीन मुश्किलात का शिकार। PDMA के मुताबिक बालाई इलाकों में बारिशों से दरियाओं के बहाव में इजाफे का खदशा है। NEOC ने 4 अगस्त तक दरियाओं में पानी के बहाव में नुमाया इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया।